ان کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آغاز میں شہر قائد کے موسم کا احوال اپنے ناظرین کو بتائیں گے۔ کراچی میں آج 10 آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر آ گیا ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق کراچی شہر میں آلودگی کی شرح 220 پارٹیکولیٹ میٹر ریکارڈ کی گئی ہے۔ مزید بات کریں گے، ہماری نمائندہ فاطمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فاطمہ، آگاہ کیجیے گا موسم بارے۔ جی بالکل، فضائی آلودگی کا زور جو ہے وہ شہر قائد میں برقرار ہے۔ دنیا کے 10 آلودہ ترین شہروں میں کراچی جو ہے وہ اس وقت دوسرے نمبر پر ہے۔ شہر میں آلودگی کے ذرات کی تعداد جو ہے وہ 220 پرٹیکولر میٹر جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس کی بڑی وجہ شہر میں چلنے والا جو ہیوی ٹریفک ہے، اس سے نکلنے والا دھواں، اس کے علاوہ جو فیکٹریز میں نکلنے والا دھواں ہے وہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم موسم کی بات کریں تو شہر قائد میں آج صبح کے اوقات میں اور جو رات کے اوقات میں خنکی ہے، اس کی شدت میں جو ہے وہ اضافہ محسوس کیا جا سکتا ہے، جبکہ دوپہر کے اوقات میں محکمہ موسمیات کے مطابق آج موسم خشک رہے گا۔ موجودہ درجہ حرارت 13 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ کم سے کم درجہ حرارت 11.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ہوا میں نمی کا تناسب 60% ہے۔ اس کے علاوہ شہر کا حد نگاہ صبح کے اوقات میں 2.5 کلومیٹر تھا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج دوپہر کے اوقات میں موسم جو ہے وہ خشک رہے گا اور شمال مشرق سمت سے جو ہے وہ ہوائیں چل رہی ہیں۔ ہوا کی رفتار اس وقت 9 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ کیونکہ شہر کا موسم بدلا ہے، فضائی آلودگی کا زور جو ہے وہ برقرار ہے۔ فضائی آلودگی کے بارے میں ایک شہری میرے ساتھ موجود ہے، صبح کے اوقات میں آتے ہیں یہ واک کرنے۔ مجھے بتائیے گا کہ کتنا جو ہے وہ پریشانی محسوس کی جا رہی ہے فضائی آلودگی کی وجہ سے؟ دیکھیں جی، فضائی آلودگی کا تو جو یہاں پر ایشو ہے بنا ہوا ہے، وہ ہمارے یہاں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ٹریفک جو ہے وہ اتنا زیادہ ہمارے یہاں جو ہے وہ بڑھ چکا ہے کراچی کے اندر، جس کی وجہ سے جتنی پرانی گاڑیاں ہیں، اصل میں پہلے جو ہے ان گاڑیوں کی چیکنگ ہوتی تھی اور وہ ڈپٹی کمشنر وغیرہ جو ہے وہ باقاعدہ ان کو چیک کرتے تھے، لیکن وہ سب چیزیں ختم ہو چکی ہیں ہمارے یہاں، سمجھے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ پولوشن اتنا زیادہ ہو چکا ہے یہاں پہ کراچی کے اندر، اور ہمارا سارا جتنا سلسلہ ہے آپ دیکھیں، سمجھیے کہ یہاں پر بیماریوں کا وہ سارا اسی وجہ سے ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ موسم ماشاءاللہ بہت اچھا ہو گیا ہے، لیکن اگر تھوڑی سی حکومت اس کے اوپر توجہ دی جائے، سمجھے، پولوشن کے اوپر جو ہے، جو فیکٹریوں کا دھواں ہے اور دوسری چیزیں ہیں، تو یہاں پر جو ہے اس کی وجہ سے بڑی دقتیں پیش آ رہی ہیں۔ اور ہمارے ہل پارک کے اندر آپ دیکھیں ماشاءاللہ، سمجھیے یہاں پر جو ہے، میں تو یہ چاہوں گا کہ اگر حکومت تھوڑی سی سپورٹ کرے ہمارے ہل پارک کے اندر، تو یہاں پر جو ہے وہ نیچرل جگہ ہے یہ ہماری ہل پارک کی، اور یہاں چاہیے ان کو کم سے کم پلانٹیشن کرنے کے لیے کہ پلانٹیشن کریں زیادہ سے زیادہ، جس کی وجہ سے پولوشن جو ہے اس کو کوریج ملے کم سے کم جو ہے۔ جی بالکل، آپ نے سنا جیسے کہ شہر قائد میں جو ہے وہ ساتھ ہی ساتھ گرین بیلٹ کا بھی جو ہے وہ خاتمہ ہوا چلا جاتا ہے۔ شہریوں کی یہی حکومت سے اپیل ہے کہ کچھ ایسے اقدامات کیا جائیں کہ فضائی آلودگی کا جو زور ہے اس کو کسی حد تک قابو پایا جا سکے، تاکہ جو سردیوں کا موسم ہے اس کو شہری انجوائے کر سکیں۔ جی اچھا فاطمہ، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے 10 آلودہ ترین شہروں میں کراچی دوسرے نمبر پر آ گیا ہے، اور زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ آلودگی دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں بھی اس میں پیش ہے، تو اس کے خلاف کارروائی کا عندیہ دیا گیا تھا دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف، وہ کارروائی کہاں تک پہنچی ہے کراچی؟ جی بالکل، ٹریفک پولیس کا بھی کہنا یہی ہے اور حکومت کی جانب سے بھی جو ہے اقدامات تو کیے جا رہے ہیں، لیکن ایک دم سے جو ہے یہ فضائی آلودگی کا زور جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ہیوی ٹریفک کا تو اس میں بہت زیادہ ساتھ ہے یہ۔ اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں فیکٹریوں سے نکلنے والا دھواں ہے۔ محکمہ ماحولیات کا کہنا یہ ہے کہ جو ہم نے جو ویسٹ پروڈکٹ ہے، سالڈ ویسٹ مٹیریل کی جو برننگ ہے، اس پہ ہم نے بین لگا دیا ہے، جس کی وجہ سے جو فضائی آلودگی کا زور جو تھا وہ کافی تیزی سے بڑھ رہا تھا، اس پہ کسی حد تک قابو پایا گیا ہے۔ جی اچھا فاطمہ، جیسے کہ آپ بتا رہی ہیں کہ جو ویسٹ چیزیں ہوتی ہیں، جلایا جاتا ہے، کوڑا جلایا جاتا ہے، اس کے خلاف بھی کہہ دیا کہ کارروائی ہوگی، اگر کوئی پکڑا جاتا ہے تو قانون کے مطابق کیا سزا ہو سکتی ہے، کیا کارروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے؟ جی بالکل، صرف یہ کمپلیٹلی طور پہ جو ہے وہ انڈسٹریز کتنے جو سالڈ ویسٹ مٹیریل، اس کا 2 سال پہلے ہی جو ہے وہ محکمہ ماحولیات کے مطابق جو ہے اس پہ بین لگا دیا گیا تھا۔ اگر ابھی اس طرح کا کوئی بھی ایسا ایشو سامنے آتا ہے کہ جس میں کچرا جو ہے، جو سالڈ ویسٹ مٹیریل ہے، اس کو جلایا جاتا ہے، تو حکومت کی جانب سے اس پہ سخت جو ہے وہ سزا دینے کا جو ہے وہ کہہ دیا گیا ہے۔ جی
ठीक है, बहुत शुक्रिया फातिमा। आगे बढ़ते हैं। कोरंगी मेहरान टाउन में फैक्ट्री में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। हुकाम के मुताबिक कंपनी में स्टूडियो कायम है जहां बड़ी तादाद में फर्नीचर मौजूद था। कोरंगी मेहरान टाउन में कायम स्टूडियो में आग लग गई। इत्तला जैसे ही मिली, पुलिस और फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर पहुंच गया और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। फायर ब्रिगेड के ऑफिसर जफर के मुताबिक शाम 7 बजे आग की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी रवाना की गई। आग की शिद्दत को देखते हुए मजीद गाड़ियां तलब की गयी। एक्चुअल हमें जो इत्तला तकरीबन 7 बजे करीब जो है हमें इत्तला मिली थी। फायर टेंडर्स हमने अपनी एक पहले रवाना की और उसके बाद मजीद हमने अपनी 5 फायर टेंडर्स मंगाई। टोटल 5 फायर टेंडर्स की मदद से हमने इस आग को काबू पाया। इब्तिदाई तौर पर वाकया शॉर्ट सर्किट लगता है, ताहम तहकीकात की जा रही हैं। ये स्टूडियो के नाम से जगह है, इसका वेयर हाउस था। उसमें तमाम जो स्टूडियो में सामान इस्तेमाल होता है, प्लास्टिक, गद्दा, कपड़ा, लकड़ी, तमाम चीज़ें इसमें मौजूद थी बेसमेंट में। और ये बेसमेंट से आग लग के जो है वो फर्स्ट फ्लोर तक आ गई थी और हमें तकरीबन इस वक्त 2 से ढाई घंटे हो गए और ऑपरेशन हमने मुकम्मल कर दिया है। अब सिर्फ वाइंड अप कूलिंग पे काम कर रहे हैं। हार्डली आधे घंटे बाद इसको इंशाल्लाह ख़त्म कर देंगे। आतिशज़दगी की इत्तला पर वाटर बोर्ड लांडी हाइड्रेंट पर इमरजेंसी नाफिज की गई थी। आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कैमरामैन राहिल अहमद के हमरा शाहजेब हुसैन, सिटी 21। शहर में तरक्याती कामों के बायस सड़कों की अब तक सूरत-ए-हाल है। बेशतर इलाकों में शाम के औकात में ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया है, सुस्तरवी का शिकार हो गया है। शहरियों का कहना है मुसाफिरों को मिनटों का सफर घंटों में तय करना पड़ रहा है। ये है शहर कायद की सड़कें, जहां शाम होते ही गाड़ियों का समंदर उमड़ आता है। यहाँ तरक्याती कामों और जगह जगह खुदाई के बायस ट्रैफिक जाम मामूल बन चुका है। शहर की मरकजी शाहराएं शारा फैसल, शहीद मिल्लत रोड, यूनिवर्सिटी रोड, ईसा नगरी, गोलीमार और राशिद मिनाज रोड पर ट्रैफिक जाम का सामना रहता है। शहरियों का कहना है कि ट्रैफिक की रवानी जारी रखने के लिए मुस्तकिल हल किया जाए। ट्रैफिक जाम के बायस न सिर्फ वक्त जाया होता है बल्कि इजाफी ईंधन का भी बोझ बर्दाश्त करना पड़ता है। ये डेली का मामूल है। कराची शहर में आप बलोच पुल ले लें, कयूमाबाद ले लें, उसके बाद सब्जी मंडी ले लें, ये हसन स्क्वायर ले लें, ये पूरे रास्ते जाम मिलते हैं। खाली टाइम ज़ाया नहीं होता, हमारा फ्यूल भी डबल लगता है। तरक्याती कामों के बायस शहरी नाक, गला और सांस की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, जबकि मोटरसाइकिल सवारों को कमर दर्द की शिकायत का भी सामना है। कैमरामैन हसन मेहदी के साथ जावेद कायम खानी, सिटी 21। आजम सवाती के खिलाफ सिंध में मुकदमा दर्ज करने का मामला है। मुकदमा कालदम करार देने से मुतल्लिक दरखास्त की समाअत सिंध हाई कोर्ट में आज होगी। आईजी सिंध हाई कोर्ट पहुंच गए हैं, अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं। आजम सवाती के खिलाफ सिंध में मुकदमात दर्ज करने का ये मामला है। मुकदमात कालदम करार देने से मुतल्लिक दरखास्त की समाअत सिंध हाई कोर्ट में आज होगी और आईजी सिंध हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। दूध की कीमत क्या होगी? कमिश्नर कराची ने 16 दिसंबर को दूध की तमाम स्टेक होल्डर्स तंजीमों का इजलास बुला लिया है। इजलास में डेयरी फार्मर समेत दीगर स्टेक होल्डर्स को शिरकत की दावत दी। आपको बता रहे हैं कि दूध की कीमत क्या होगी, इस हवाले से 16 दिसंबर को इजलास बुलाया गया है। इजलास के हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे हबीब खान से। जी बिल्कुल, देखिए कराची में दूध की कीमतों के जो तयनाती का मामला है उसके हवाले से एक बार फिर कमिश्नर कराची ने जो है वो इजलास तलब कर लिया है और इजलास जो है वो 16 दिसंबर बरोज़ जुम्मा दोपहर 3 बजे जो है वो कमिश्नर हाउस कराची में बुलाया गया है, जिसमें दूध के जो तमाम तर स्टेक होल्डर्स हैं और कराची की जो तंजीमें हैं, जिसमें कराची के डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन हैं, जिसमें शाकिर उमर गुज्जर और इसके साथ साथ हाजी अख्तर और इसके साथ साथ जो कराची में रिटेलर्स की मिल्क के एसोसिएशन है, जिसमें अब्दुल वहीद गद्दी मिल्क रिटेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन और इसके साथ साथ कराची के जो कंज्यूमर के हवाले से बात करने वाले अफराद तंजीमें एसोसिएशन हैं, उनको भी इसमें जो है वो इजलास में तलब किया गया है। और कराची के जो तमाम तर असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनको भी इस इजलास में जो है वो कल तलब किया गया है। कमिश्नर हाउस कराची में ये इजलास कल 3 बजे जो है वो मुनक़िद होगा। और दूध की कीमत के हवाले से बात करें तो इस वक्त सरकारी तौर पे जो कमिश्नर की जानिब से दूध की कीमत है वो 170 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर है और शहर में कहीं पर दूध 170 कहीं पर 180 इस वक्त जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो 2 रोज़ कबल डेयरी फार्मर्स की जानिब से यह ऐलान किया गया था कि इस वक्त मौजूदा हालात में ख़ास तौर पर जो फ़ीड की कंडीशन है, भैंसों
भैंसों के जो चारे हैं उसकी जो कीमतें हैं उसमें इजाफा हुआ है, जिसके बाइस दूध मौजूदा कीमतों पर फ़रोख्त करना मुमकिन नहीं हो पा रहा है और इजाफे का मुतालबा किया गया था, जिसके बाद अब कमिश्नर कराची की जानिब से दूध की नई कीमतों के तयनाती के हवाले से इजलास जो है वो तलब कर लिया गया है और इजलास बरोज़ जुम्मा 3 बजे करने के लिए। कराची के मुख्तलिफ मकामात के ट्रैफिक सिग्नल्स पर गदागर बच्चों की भरमार है। मुस्तकबिल के ममार कलम किताब थामने की बजाय गदागरी पर मजबूर हैं। इंतज़ामिया हरकत में आ गई है। डिप्टी कमिश्नर ने बच्चों से गदागरी करवाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान कर दिया है। किताब थामने की उम्र में दस्ते सवाल करते शहर कायद के कमसिन कराची में बच्चों को गदागरी पर लगाने वालों की शामत आ गई। डिप्टी कमिश्नर साउथ कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सईद लगारी ने डंडा उठा लिया। बोले शहर में ट्रैफिक सिग्नल्स पर बच्चों से ज़बरदस्ती भीख मंगवाने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। इन्होंने वाज़े किया कि पुलिस, महकमे समाजी बहबूद और सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के साथ मिलकर टीम तश्कील देगी जो बच्चों को इस लानत से बचाने के मिशन पर काम करेगी। डिप्टी कमिश्नर साउथ ने गुज़िश्ता रोज़ बच्चों के हुकूक से मुतालिक ज़िलाई राब्ता कमेटी का इजलास बुलाया था, जिसमें डायरेक्टर जनरल सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी असगर अली घांगरो, सदर चेयरमैन FPCCI स्टैंडिंग कमेटी शायान मलिक, एडिशनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट फरीदा यामीन, डायरेक्टर सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी फोजिया मैसन, जबकि कराची डिवीजन के तमाम अजला के चाइल्ड प्रोटेक्शन अफसरान और असिस्टेंट कमिश्नर्स भी शिरकत की। उधर सारिम बर्नी ट्रस्ट इंटरनेशनल की वाइस चेयरपर्सन का भी रद्दअमल सामने आ गया। सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए आलिया सारिम बर्नी ने भी तस्लीम किया कि बच्चों से गदागरी कराई जाती है। हॉस्पिटल के बाहर कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर ये गदागर और ये बेकारी हमें नजर न आए, और इसमें क्योंकि बच्चों के ऊपर एक खास हमदर्दी होती है, बच्चों को देखकर उन पर प्यार आता है, उन पर रहम भी आता है, जो एक इंसानी फितरत है। तो ये गदागर आम तौर से अपने साथ उन बच्चों को रखते हैं जिन्हें देखकर इन्हें भीख आसानी से मिल सके। चेयरपर्सन सारिम बर्नी का कहना था कि शहर कायद में गदागरी कराने वाले एक माफिया की हैसियत इख्तियार कर चुके हैं, जिन्हें रोकने के लिए हम सबको अपना अपना किरदार अदा करना होगा। बिलाल कॉलोनी के सरकारी स्कूल के तलबा ने अपनी मदद आप के तहत स्कूल की सफाई का आगाज़ कर दिया। तलबा ने गंदे पानी और कचरे से मुतल्लिक इंतज़ामिया को दरख्वास्तें जमा कराई थीं। सिटी 21 ने भी इस सूरत हाल को रिपोर्ट किया। बिलाल कॉलोनी में वाक़िया गवर्नमेंट उर्दू बॉयज़ एंड गर्ल्स प्राइमरी स्कूल के ग्राउंड में गुज़िश्ता 3-4 महीनों से बारिश और सीवरेज का पानी खड़ा था। साथ ही इलाके का कचरा भी वहीं डाला जाता था, जिससे बच्चों और असातिज़ा को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। इलाके के नौजवान और स्कूल के तलबा ने मिलकर सफाई सुथराई का बीड़ा उठाया। आगे बढ़ते हैं। जिन्ना टाउन UC 7 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बल्दियाती उम्मीदवारों का कहना है कि आवाम को इनको वोट दें जो इलाके का रहने वाला हो। कराची में बल्दियाती इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की सरगर्मियां बढ़ने लगी। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारान भी अपनी मदद आप के तहत सुबह शाम बल्दियाती इदारों के साथ राब्ते में रहकर अपने अपने इलाकों में सीवरेज और गंदगी के मसाइल हल करवाते नजर आ रहे हैं। जिन्ना टाउन UC 7 से पीपल्स पार्टी के वाइस चेयरमैन के लिए उम्मीदवार सलीम भुगियो और कौंसलर के उम्मीदवार मोहम्मद जावेद ने अवाम से अपील की है कि वो सिर्फ उन्हें वोट दें जो उनके मसाइल हल कर सके। हमारी जो पूरी UC की टीम है और हमारी जो आला क़यादत है उन्होंने भरपूर हमारा साथ दिया हुआ है, और हमारी UC 7 जिन्ना टाउन जो है इस पे हमारे सारे काउंसलर हों, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन जितने भी हैं, वो सब दिन और रात लगा के लोगों की खिदमत में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और आगे बढ़े हुए। पीपल्स पार्टी चांदनी चौक के अहदेदारों और उम्मीदवारों का कहना था कि अवामी नुमाइंदों का काम सिर्फ वोट हासिल करना नहीं, मसाइल हल करना भी है। पीपल्स पार्टी ने उन्हीं लोगों को टिकट दिया है जो उस इलाके में रहता हो। ना होते हुए ये समझ लें अभी हम इलेक्शन में खड़े हैं, जीते नहीं हैं, हम अपना काम करके दिखा रहे हैं। इदारे हमारे साथ हैं। लोग बोलते हैं इख्तियारात नहीं, मैं बोलता हूँ इदारे, जब भी हमने कोई अपना काम बताया फ़ौरन वहाँ इदारा पहुँचा है। सीवरेज हो और जो ना सफाई का काम हो या हमारे जितने भी सफाई के लोग हैं सीवरेज की, सब पहुँचते हैं। कराची में बल्दियाती इंतखाबात का मैदान 15 जनवरी को सजेगा। अवाम के लिए ये अहम मौका है कि वो ऐसे लोगों को मुंतखब करें जो उनके मसाइल को समझें और उन्हें हल करें। कैमरामैन असगर के हमरा मोहम्मद कामरान, सिटी 21। साबिक वफाकी वजीर बाबर गौरी के खिलाफ मुकदमात इंक्वायरीज की तफसीलात का केस सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। जस्टिस करीम खान आका ने कहा कि हमने जामे रिपोर्ट तलब की थी,
IG सिंध को कहें आज ही पेश हों, अपने नाजरीन को आगाह कर रहे हैं। साबिक वफाकी वजीर बाबर गौरी के खिलाफ मुकदमात इंक्वायरीज की तफसीलात का केस है। सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस रिपोर्ट मुस्तरद कर दी है। जस्टिस करीम खान आगा के कहा है कि हमने जामे रिपोर्ट तलब की थी, IG सिंध को कहें आज ही पेश हों। अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं, साबिक वफाकी वजीर बाबर गौरी के खिलाफ मुकदमात की इंक्वायरीज की तफसीलात के हवाले से केस है और सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस की रिपोर्ट जो है वो मुस्तरद कर दी है। जस्टिस करीम खान आगा ने कहा कि हमने जामे रिपोर्ट तलब की थी, IG सिंध को कहें आज ही पेश हो। अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं, साबिक वफाकी वजीर बाबर गौरी के खिलाफ मुकदमात इंक्वायरीज की तफसीलात के हवाले से केस है। आगे बढ़ते हैं। दालों के हजारों कंटेनर्स पोर्ट पर फंसने से मसाइल संगीन हो गए हैं। क्लियरेंस ना मिलने पर दालों के बहरान का खदशा पैदा हो गया है। डॉलर की किल्लत, पोर्ट में क्लियरेंस का मसला, मुल्क में दालों के बहरान का खदशा। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रईफ इब्राहिम का कहना है कि पोर्ट पर दालों के सैकड़ों कंटेनर्स क्लियरेंस के मुंतजिर हैं, ताहम क्लियरेंस नहीं मिल रही। देखिए, अभी तो रोज़ की तादाद पे आते हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि फ़िक्स तादाद हो चुकी है। कभी 4,500 होते हैं, कभी 5,000 हो जाते हैं, कभी 4,000 हो जाते हैं, फिर 6,000 हो जाते हैं। देखिए, इस तरह ये हो रहा है कि जो डॉलर है ना, हमें चाहिए 100 कंटेनर के, तो हमें जो मिल रहे हैं ना वो 10-12 कंटेनर के मिल रहे हैं, जिससे डिमांड और सप्लाई में गैप हमें अंदेशा है कि वो होगा। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के मुताबिक अगर यही सूरत हाल रही तो दालों की कीमत कंट्रोल रखना मुमकिन नहीं होगा। आइंदा दिनों में 150 वाली दाल 200 और 200 वाली 300 रुपए में भी नहीं मिलेगी। 80% ज़रिए कंट्री तो है नहीं, इम्पोर्ट बेस्ड कंट्री है। उसको अगर हम इसको फ़ौरन इक़दाम नहीं करेंगे तो मुझे अंदेशा है कि ये दालों के रेट जो 150 रुपये हैं वो 200 पे पहुँचेंगे, 200 वाले कहीं 300 पे पहुँच जाएँ। सप्लाई डिमांड पे मार्केट चलती हैं, इसको फिल फौर इन पे इक़दाम उठाने की ज़रूरत है वज़ीर ख़जाना को, वरना ये मुश्किलात और मज़ीद खड़ी हो जाएंगी। रमज़ान के महीने आने वाले हैं जिसमें खपत बहुत ज़्यादा होती है। अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने मुतालबा किया कि हुकूमत फिलफौर डॉलर का बंदोबस्त करके कंटेनर्स की क्लियरेंस यकीनी बनाई जाए। गैर ज़रूरी अशिया के लिए भी फिलहाल डॉलर की सप्लाई रोक दी जाए। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा हबीब खान, सिटी 21। चेयरमैन नेशनल बिजनेस ग्रुप कहते हैं डॉलर की शदीद किल्लत की वजह से 4,000 से ज्यादा कंटेनर्स बंदरगाहों पर फंसे हुए हैं। मुल्क की माशी सूरत-ए-हाल मुश्किल हालात से गुजर रही है। नेशनल बिजनेस ग्रुप चेयरमैन मियां जाहिद हुसैन ने कहा कि डॉलर की शदीद किल्लत है जिसकी वजह से मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। ये भी कहा कि डॉलर की किल्लत होने से दरामदी 4,000 से ज्यादा कंटेनर पोर्ट पर फंसे हुए हैं। ये भी कहा कि इंडस्ट्री के पास खाम माल न होने की वजह से अब इंडस्ट्री बंद हो रही है, जिससे बेरोजगारी बढ़ रही है। देखें जी, इस वक्त जो सूरत हाल है, बिजनेसमैन बहुत परेशान है, क्योंकि जो आपको पता ही है कि इस वक्त तकरीबन को 4,000 के करीब कंटेनर्स जो हैं वो पोर्ट के ऊपर स्टक हैं, और ये सिचुएशन जो है ये पिछले कोई 3-4 महीने से इसी तरीके से कंटिन्यूड है। एक एक कंटेनर को रिलीज़ कराने के लिए 2-2 महीने लग रहे हैं, और उसके लिए गवर्नमेंट के पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, तो अब ज़ाहिर है कि उसमें इकनॉमिक एक्टिविटी जो है वो मुतासर हो रही है। और इसके साथ साथ जो है इंडस्ट्री में देखें तो गैस नहीं है, और गैस 4-5 महीने से उनकी गैस काटी हुई है। फिर ये कि अगर बिजली लेने जाओ तो बिजली नहीं है। नेशनल बिजनेस ग्रुप चेयरमैन ने कहा कि इंटरबैंक का ऊपर मार्केट में डॉलर का फर्क बहुत ज्यादा है। ब्लैक में डॉलर की कीमत 255 रुपए हो चुकी है। ये भी कहा कि इंटरबैंक का ऊपर मार्केट के बड़े फर्क की वजह से तरसीलात ज़र भी गिर रही हैं। ये तजवीज़ दी कि डॉलर को अब मार्केट के हिसाब से छोड़ना होगा। मार्केट का जो डिफरेंस है डॉलर का और इंटरबैंक जो रेट है सरकारी, उसका डिफरेंस भी ख़त्म करना होगा, और उसको ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि आप डॉलर को फ्री छोड़ें, आज़ाद छोड़ें। डॉलर की कीमत अगर बढ़ती है बेशक बढ़ा दें, इंटरबैंक में भी बढ़ा दें, क्योंकि अमलन इस वक्त जो है वो डॉलर मार्केट में महंगा ही है, और उसकी वजह से जो आपकी फॉरेन रेमिटेंस है वो भी कम हो रही है। मियां जाहिद हुसैन ने कहा है कि मुश्किलात में घिरी मईशत को बेहतर करने के लिए अहम फैसले करना ही होंगे। दरामदाद को हर सूरत कम करना होगा, बरामदाद समेत बैरून मुल्क से आने वाली तरसीलात ज़र को बढ़ाना होगा। कैमरामैन शकील के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। चेयरमैन ऑल सिटी ताजर एतहाद शर्जील गोपलानी ने कहा है कि महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती लागत से हर सेक्टर का काम बैठ गया है। सनतकार हो या ताजिर, महंगाई से हर कोई शदीद परेशान। चेयरमैन ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद शर्जील गोपलानी ने शिकवा किया कि हुकूमत की नाकिस प्लानिंग और डॉलर ना मिलने से लागत हर रोज बढ़ रही है। महंगाई और लागत बढ़ने की वजह से तामीराती शोबे समेत हर सेक्टर का कारोबार ठप हो गया है। टिम्बर मार्केट में जो मशीनें 24 घंटे चलती थी अब 8 घंटे भी नहीं चलती। कारोबार ना होने के बराबर रह गया है। आपका कंस्ट्रक्शन का काम तकरीबन बंद हो चुका है।
इस वक्त आप टिम्बर मार्केट में मौजूद है। लकड़ी ऐसी चीज़ है जो कि हमारे पास जंगलात कम होने की वजह से हमें मजबूरन दरामद करनी पड़ रही है, और हमने इंटरनेशनल मार्केट में हमारे रिलेशन ऐसे बनाए हुए हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट DP और DA पे आ जाते हैं, हमें LC की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम पैसा फंसाएं, और जो बाहर फॉरेनर कंपनियां हम पे ट्रस्ट करती हैं। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान की ये नाकिस पॉलिसी की वजह से, डॉलर ना मिलने की वजह से हमारा वहाँ पे एतमाद मजबूर होता जा रहा है। चेयरमैन ऑल सिटी ताजे इत्तेहाद ने कहा कि कारोबार में कमी और दरामदी माल क्लियर न होने की वजह से FBR को टैक्स जमा कराने में मुश्किलात का सामना है। उन्होंने FBR पर सेक्शन 48A के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम भी लगाया। उस वक्त अपना सेक्शन 48A का और नाजायज़ इस्तेमाल कर रही है, और जो कमर्शियल इंपोर्टर हैं जो कि एडवांस इनकम टैक्स देते हैं, उनके अकाउंटों से पे ऑर्डर बना के ले जा रहे हैं। आज दोपहर को 3 बजे हमारी कमिश्नर इनकम टैक्स के साथ मीटिंग है, और हम बिल्कुल डायरेक्ट वार्न करने जा रहे हैं, अगर आप लोगों ने अपनी रवैश चेंज नहीं की तो फिर ये पैसा आपका कागज हो जाएगा। शशि गुपलानी का कहना था कि ये सूरत-ए-हाल मजीद नहीं चल सकती। हुकूमत को अब दरामदी माल क्लियर कराने के लिए डॉलर की दस्तयाबी के साथ महंगाई को भी कंट्रोल करना होगा। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। महंगाई ने ग़िज़ाई अजनास की कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया है, जिससे ताजिर भी परेशान हो गए हैं। ग़िज़ाई अजनास बिलखुसूस चीनी की बढ़ती कीमत ने कारोबार ठंडा कर दिया। जोड़िया बाजार होलसेल मार्केट के ताजिर ने वजह चीनी माफिया करार दे दी। ताजिर अब्दुल मुनाफ का कहना है कि चीनी के एक्सपोर्ट की खबरों को जवाज बनाकर चीनी माफिया ने सप्लाई कम करके कीमतों में इजाफा कर दिया है। जो भी आ रहा है वो अपने हिसाब से चला रहा है। चावल हो गया, चीनी तो अभी जैसे अभी बता रहे हैं कि भाई एक्सपोर्ट हो रही है, वो कहाँ एक्सपोर्ट हो रही है ये अभी किसी को भी नहीं पता चला है। अलग है, गन्ना उतरा है, अभी सब कुछ उतरा है, तो आपके पास चीनी क्यों इतना महंगी हो रही है? आपके पास हर चीज़ पड़ी हुई है, आपने स्टॉक करी हुई है, क्या करा हुआ है जो चीनी के ऊपर इतना भाव बढ़ा रहे हैं? शहरियों का कहना है कि चीनी का शुमार लग्जरी नहीं बल्कि रोजमर्रा इस्तेमाल की बुनियादी अशिया में होता है, जिसकी कीमतों को बढ़ना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से तो चीनी सस्ती होनी चाहिए, क्योंकि अभी क्रशिंग हुई है इनकी, और सही हकीकत ये है कि जो लोग मिडिल क्लास है वो तो पिसके रह गए बेचारे। हम खुद नौकरी पेशा लोग हैं, बाखुदा बस अब तो कोई और चीज़ सोचते भी नहीं क्या बनाना है, अब यही सोचते हैं कि बच्चों का पेट पालना किस तरह। चीनी होलसेल की सतह पर 4 रुपए इजाफे से 85 रुपए से बढ़कर 89 रुपए किलो पर, और 50 किलो की फी बोरी 200 रुपए महंगी होकर होलसेल की सतह पर 4,450 रुपए तक पहुंच गई। शहरियों और ताजरों का मुतालबा है कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जामा इकदाम किए जाएं। कैमरामैन अब्दुल कयूम शेख के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। महंगाई के इस दौर में लेदर की जैकेट पहनना अब सबके बस की बात नहीं है, लेकिन कराची में एक ऐसी मार्केट भी है जहां बहुत ही कम पैसों में ये दस्तयाब हैं। मौसम सरमा में लेदर की जैकेट्स का इस्तेमाल आम सी बात है, लेकिन हालिया दिनों में लेदर की बढ़ती कीमतों की वजह से लोगों की कुव्वत खरीद कम हुई है। तो वहीं ज़ैनब मार्केट में एक ऐसी शॉप है जहां पर पुरानी जैकेटों को रंग रोगन किया जाता है। किस तरह किया जाता है आइए आपको दिखाते हैं। देखें मेरे सामने भाई ये एक जैकेट आई है, जो मेरे एक कस्टमर ने अभी आए थे, उनकी ये जैकेट बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। आप इसकी कंडीशन देख लें, इसका ये बिल्कुल कलर बिल्कुल फेड हो चुका है। ये बिल्कुल ऐसी जैकेट हो गई है जो इस्तेमाल में नहीं है, इसका कॉलर वगैरह हर चीज़ ऐसे हार्ड हो गई है। ये देखें ये हालत हुई है इनकी जैकेट की। केमिकल आते हैं न्यूट्रल फॉर्म में आते हैं, और एक्सपोर्ट क्वालिटी के केमिकल हैं, ये ब्रांडेड कलर होते हैं, और इनको ख़ुद तैयार करना होता है। इनकी जो मैचिंग होती है वो असल में हमें ख़ुद देखनी होती है, और इनकी मैचिंग करनी होती है। हम फिर उसकी मैचिंग करके फिर वो अप्लाई करते हैं। इसकी मैचिंग तैयार हो गई है, जो मुझे कलर चाहिए है, जो मुझे कलर इस पे लगाना है, अब मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगा। ये अभी मैंने इस पे कलर का प्रोसेस किया है, अभी ये मैंने सिर्फ इस पे कलर किया है। जब थोड़ा सा इसको मैं स्टे दूंगा, इसको थोड़ा सा पेनिट्रेशन का टाइम दूंगा कि कलर अच्छे तरीके से इस जैकेट में बैठ जाए, उसके बाद मैं इसके ऊपर शाइनर का हाथ मारूंगा ताकि पीस में एक लुक आ जाए, शाइन हो जाए। ये देखें ये आपके सामने ये एक जैकेट है, ये इसका पैनल है ओरिजिनल, और ये मैंने इसको ब्राउन शेड कर दिया है, ये देखें। और फ्रेशनेस देख लें आपके, अभी कितनी फ्रेशनेस नज़र आ रही है इसमें जैकेट में। 4 से 5 हज़ार रुपये की जो सबसे लास्ट लो ग्रेड की जो जैकेट होती है वो मिलती है, उससे अच्छी फिर 6,000, 7,000, 8,000 ऐसे जैकेटें मिलती हैं। और अगर कोई ऑर्डर पे बनवाता है तो वो 9-10 हज़ार रुपये की जैकेट उसको पड़ जाती है ऑर्डर पे। तो अब ये देख लें भाई, इतनी महंगी अगर कोई जैकेट जो ख़रीदने वाले हैं वो ख़रीदते हैं, लेकिन जो नहीं ख़रीद सकते हैं वो अपनी ऐसे ही पुरानी जैकेटों के ऊपर वर्किंग करवाते हैं, काम करवाते हैं, उसी को फ्रेश करवाते हैं। एक बंदे ने बताया कि आप ऊपर चले आओ, ऊपर कारखाना है 2nd फ्लोर पे, वहाँ पे पॉलिश कर देते हैं, पुरानी जैकेट्स को न्यू कर देते हैं। मैंने बोला सही है, तो ये मेरे लिए बेस्ट था। तो मेरे एक फ्रेंड के पास जैकेट पड़ी हुई थी,
तो हम ले आए, उसको न्यू करा लिया। अब मेरे पास भी एक है, वो भी मैं इनसे ही कराऊंगा, क्योंकि मुझे पता चल गया कि यहाँ पे अच्छा और सस्ते में काम हो रहा है। पुरानी जैकेट्स को नए अंदाज में तरतीब देना महंगाई के इस दौर में आम आदमी के लिए किसी बड़ी सहूलत से कम नहीं। अगर आप भी अपनी पुरानी जैकेट को नया बनाना चाहते हैं तो ज़ैनब मार्केट के 2nd फ्लोर का रुख ज़रूर कीजिए। कैमरामैन हसन इकबाल के हमरा काविश मेमन, सिटी 20। महंगाई की वजह से कराची की कदीम जोड़िया बाजार में वाक़ बर्तन गली की रौनकें भी मांद पड़ने लगी हैं। जोड़िया बाजार कराची की बर्तन गली, जहां स्टील और क्रोकरी के आइटम समेत डिनर सेट का बड़े पैमाने पर कारोबार हुआ करता था, लेकिन हालिया दिनों में स्टील और क्रोकरी आइटम्स की कीमतों में 25% इजाफे और बढ़ती महंगाई ने मार्केट की रौनकों को मुतासिर कर दिया है। दुकानदार भी कारोबार में कमी पर परेशान नजर आते हैं। सिटी 21 से बात करते हुए सदर बर्तन बाजार जावेद शेख का कहना था कि स्टील और क्रोकरी की मैन्युफैक्चरिंग पंजाब में होती है, मगर खाम माल बाहर से आता है। डॉलर की वजह से कीमतें बढ़ गई हैं। पाकिस्तान के अंदर जो ना वो मैन्युफैक्चरिंग तो होती है, लेकिन रॉ मटेरियल तो बाहर से आता है। अब जैसे हमारा जो आइटम है ये ठीक है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग तो पंजाब में गुजरांवाला इसका शहर है, सियालकोट है, लेकिन जाहिर सी बात है कि ये जो शीट है ये तो बाहर से आती है। अब ये शीट आती है डॉलर में, अब डॉलर के हिसाब से ये शीट जब आएगी उसी हिसाब से इसके अखराजात चलेंगे। अगर शीट कम रेट में आएगी तो कम रेट बनेंगे। मार्केट के दुकानदारों का कहना है कि एक वक्त में यहाँ चलने की जगह नहीं होती थी, मगर अब बिल्कुल सन्नाटा है। वो घंटों ग्राहक का इंतजार करते हैं। यहाँ पे चलने का रास्ता नहीं मिलता था, लोगों को रुक रुक के चलना पड़ता था। अब ये आज आप खुद देख सकते हैं मार्केट में बिल्कुल सन्नाटा लगा है, तो घंटों घंटों ग्राहक नहीं आता है। हुकूमत से मुतालबा करेंगे ज़रूर कि वो हमारे एहसास को, ज़िम्मेदारी को ज़रा समझें कि भाई हम किस तकलीफ़ में गुजर रहे हैं। बर्तन बाजार के ताजरों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इकदाम करे, ताकि गरीब को रिलीफ मिलने के साथ उनके कारोबार में भी बेहतरी आए। कैमरामैन काशिफ खान के हमरा काविश मेमन, सिटी 21। आपको बताएं कि आजम सवाती के खिलाफ सिंध में मुकदमा दर्ज करने का मामला है। अदालत ने केस C क्लास कर दिया है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद से। बिलाल, अपडेट कीजिएगा। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा आजम सवाती की गिरफ्तारियों और जो सिंध में मुकदमा दर्ज हुए हैं उनके खिलाफ आजम सवाती के साहबजादे हैं बैरिस्टर उस्मान सवाती, उनकी 2 दरख्वास्तें थी जिसकी समाअत सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस करीम खान आगा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की। दौरान समाअत IG सिंध गुलाम नबी मेमन, प्रोसिक्यूटर जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल, मुतलका जो SSPs और SHOs, तफ्तीशी अफसरान कमरा अदालत में मौजूद थे। IG सिंध की जानिब से रिपोर्ट प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध ने पेश की और कहा कि जितने भी सिंध में न सिर्फ कराची बल्कि पूरे सिंध से तमाम मुकदमात को C क्लास करार दे दिया है और आजम सवाती को इस्लामाबाद भेज दिया गया है। दौरान समाअत IG सिंध रोस्टम पर आए और उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता समाअत पर जो तलखी हुई उस पर वो माज़रत ख्वाह हैं, जिस पर जस्टिस करीम खान आगा ने कहा कि वो मामला ख़त्म हो चुका है और आपका बहुत शुक्रिया। इसके बाद अनवर मंसूर खान ने अदालत में ये एतराज़ उठाया कि मुकदमा को C क्लास करार दिया गया है, कलअदम करार नहीं दिया गया, जिस पर अदालत ने कहा कि चूंकि अब मामला खत्म हो चुका है और IG सिंध और प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध दोनों ने अदालत में ये यकीन दहानी कराई कि इन मुकदमात को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया जाएगा। अदालत ने अपनी ऑब्जर्वेशन में कहा कि हम कोई मामला यहाँ पर ऐसा नहीं देख रहे थे जिसमें तनाव आया। हमारा मामला ये है कि हम शहरियों के बुनियादी जो हकूक हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदालत में ये फैसले करने पर मजबूर होते हैं और यही वजह है कि गुज़िश्ता समाअत पर जो कुछ हुआ अदालत ने अपने ऑब्जर्वेशन में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ किया। अदालत में IG सिंध और प्रोसिक्यूटर की जानिब से जो दलाइल दिए गए और अदालत को कहा गया कि आजम सवाती के खिलाफ तमाम मुकदमात को C क्लास करार दे दिया है, तो उसके बाद अब अदालत ने जो आजम सवाती के साहबजादे की जो 2 दरख्वास्तें थी मुकदमात और गिरफ्तारी से मुताल्लिक़ उनको निपटा दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल। कराची की ज़िला अदालतों में आज भी अहम केसेस की समाअत होगी। कौन कौन से केसेस हैं जिनकी समाअत होगी, मुमताज़ जमाली बताएंगे। देखें जी, आज कराची के ज़िले अदालतों में अहम केसेस की समाअत होगी। साथ ही साथ मुख्तलिफ थानों से गिरफ्तार मुलजमान को भी आज अदालत में पेश किया जाएगा। मारूफ अदाकार फिरोज़ खान की आज फैमिली कोर्ट में केस की हेयरिंग होगी। अदालती अहकामात पर आज उनकी बच्चों से मुलाकात कराई जाएगी। साथ ही साथ आज पेशरफ्त रिपोर्ट भी अदालत में पेश की जाएगी जो डावरी आर्टिकल्स हैं अलीज़े को वापस करने से मुतल्लिक। और गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने दोनों फरीक़ैन को मिल बैठ कर सुलह करने की हिदायत की थी, तो आज दोनों जो हैं वो मिल बैठ कर जो जितने मामलात हैं वो तय करने की कोशिश करेंगे। तो वहीं पर आज मकान मालिकान की जानिब से मुबैना तौर पर तशद्दुद करके 9 उम्र मुलाजिम की हलाकत से मुतल्लिक भी केस की समाअत होगी। आज इस जो केस में जो मकतूल है
کی والدہ آج اپنا بیان عدالت میں قلم بند کرائیں گی. ساتھ ہی ساتھ اس کے علاوہ احتساب عدالت میں بھی اہم کیسز کی سماعت آج